You know, the grandeur of the place, Yes. इतना सुंदर, इतना सब कुछ इतना बढ़िया था, उस चीज़ ने तो हमें मतलब मोहित किया। मगर उसके बाद जो रगड़ा पट्टी एंड गेटिंग इनटू द रट, Yes. उस चीज़ में तो 2-3 महीने तो पता भी नहीं चला, हमने तो मतलब घर की भी याद नहीं आने का मौका भी नहीं मिला। एंड आई टेल यू दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। अच्छा। मद्रास रेजिमेंट इज नॉट ओनली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स, हमारे आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, और उसके ऊपर से मेरे को मिली 9 मद्रास। तंबीज का जो प्रेम है, उनके जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, आई मीन इट इज पार एक्सेलेंस। हम नीचे थे वैली में, वो थोड़ा ऊपर थे। ओके। अभी उसके ऊपर उन्होंने अपना पोजीशन बनाकर हमारे ऊपर फायर Firing. एकदम खोल दिया। एज ऑफिसर्स सबसे ऊपर आता है हमारा देश। Hello, Namaste, and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टुडे। He is a veteran from the Indian Army, Colonel Divakar Dogra, Vishisht Seva Medal. Welcome, sir. Thank you, Samir. It's a privilege to be with you. I'm so happy to be speaking to you, and I'm sure I'm going to be learning a lot from you today. Same here. Same here. So, Colonel Divakar Dogra is an alumni of the National Defence Academy. He was commissioned in the Madras Regiment of Infantry Corps, Indian Army, and served for 33 years. He served in various appointments involving personnel management, training, and administration of military and civilian personnel, including recruitments, performance appraisal, and development of processes to suit the need of the organization. Colonel Dogra trained at the elite National Security Guard and coordinated training of special forces with armies of friendly foreign countries. He's had 2 tours of duty in the intense counter-insurgency environment of Kashmir as the second in command and the commanding officer. Colonel Divakar Dogra was awarded the Vishisht Seva Medal by the President of India for performance beyond the call of duty. He's been decorated twice by Northern and Southern Army commanders for outstanding performance in the face of enemy. Colonel Dogra is a keen adventurer and has led several mountaineering, rowing, and sailing expeditions too. Post-retirement, despite being offered lucrative assignments, he declined to take up the jobs and dedicated his life for the welfare of the society. He is a district coordinator of service activities in the Shri Satya Sai Seva organization in Delhi and NCR region and has been helping in the all-round development of children and youth in the urban areas. He is also a certified senior Vibrionics practitioner and gives free treatment to all in need. कहते हैं that the Indian Army is a brand, एक जबरदस्त brand. Tell us about this brand, sir. Okay. See, Samir, interestingly, I don't consider our army as a brand. We are 1.4 million strong, the second largest military force in the world, and we are totally professional. Yes. You need brands and brand ambassadors to sell if you're into corporate or selling some commodity. We as professionals are actually, I won't say branding it as such, but yes, one thing is there. I've seen it over the years. Now it has become a very obvious thing also. When we have people like our cricketing icons, Yes. MS Dhoni, Yeah. Sachin Tendulkar, Yeah. joining our territorial army. Yeah. And the press generally calls them brand ambassadors of the Indian Army. Oh. So in that sense, one can say that, yes, in civilian parlance, you can call us a brand by itself. By itself, absolutely. Yeah. Or you can call, a bigger
a bigger version than a brand. Yeah, some Yeah. probably will need to have coin another word for it. I get that. I get that. Yeah. Right. So बताइए, what does it take or what is required for somebody aspiring to join the Indian Army? Okay, that's a very interesting thing. I think most of the people are always looking for that, answer to this particular question. Samir, because I was involved in the Services Selection Board as an interviewing officer, I Okay. was deputy president of a board in Bangalore. Okay. So I can tell you what we are really looking for. We are actually looking for a very average Indian male or female, a youngster, जिसके अंदर जज्बा है कुछ करने का. He may be average otherwise. Yeah. I mean, we are not looking for a genius or I get that. Yeah. IQ at that level. Sure. Probably he will fit in into ISRO much better. Yeah. But yes, we are looking for a person who is average, has compassion, is honest, sincere, has tremendous sense of responsibility. He has that jazba to do something for the nation. These are the things which really we look forward to in an individual. Yeah. Of course, he has to be physically strong, mentally awake, Yeah. morally straight. So all those things are also required. Okay. But main जज्बा होना चाहिए, Jazba. passion होनी चाहिए, Yes, कुछ कर yes. दिखाने की. Yes. Wonderful. Yeah. Wonderful. That's why we have that caption going, in that, I won't call it advertisement, but an information boards that we put on. Do you have it in you? Yes. So that you, So that's what that's do you have the in kind you? That is the compassion. compassion. Wonderful. Sir, अपने experiences, trainings और learnings के बारे में बताइए at the NDA and the NCG. मैं NSG के बारे में तो बाद में थोड़ा बताऊंगा. थोड़ा बहुत कम समय तक रहा वहाँ पे. वो तो क्योंकि मेरे उसमें सी में आया था तो इसलिए मैं हाँ उसको जी. ऐड कर देता हाँ हूँ. जी. बट इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी. हम जब गए, अभी तो एज 17.5 है, 17, 17.5 साल, 18 साल के बच्चे जाते हैं. हमारी एज में हम 16 साल के थे जब हम गए. तो उस टाइम पे आप सोचिए, हमने सिर्फ स्कूल देखा था. आई स्टडीड इन दिल्ली, सलमान पब्लिक स्कूल में पढ़ा था मैं. और हमने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या होता है. यस, एक चीज थी, इट इज अ प्रेस्टिजियस थिंग टू ज्वाइन. Yes. And as God willed, and it was only His grace that in my first attempt I got through. Oh, wonderful. And I lined up in National Defense Academy without any background of army as such or knowledge of army as such. All right. So you did not have any, family members No, earlier. I had family members far related, not Yeah. immediate Not relations. immediate, okay. In fact, my grandfather himself was the store in charge and the main contractor of armed forces in Sialkot. Okay. और मेरे ताया जी थे, वो फोर्स में थे. बट वो वैसा जब मतलब वो सब छूट गया इंडिपेंडेंस के बाद. तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा कोई एक्सपोजर नहीं हुआ था. तो वहाँ पे जाकर मैं बोल रहा था जैसे कि इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. हमको पहले 3 महीने तो पता भी नहीं चला हम कहाँ आ गए हैं. द ग्रैंडियोर ऑफ द प्लेस, Yes. इतना सुंदर, इतना सब कुछ इतना बढ़िया था. उस चीज ने तो हमें मतलब मोहित किया. मगर उसके बाद जो रगड़ा पट्टी एंड गेटिंग इनटू द रट, Yes. उस चीज में तो 2-3 महीने तो पता भी नहीं चला. हमने तो मतलब घर की भी याद नहीं आने का मौका भी नहीं मिला. मौका भी नहीं हमको नींद तब आती थी, मतलब हम तब सोते थे. नाट की जब नींद आ जाए हम तब सोते थे जब टाइम मिलता था. चाहे वो ब्रेकफास्ट टेबल पर हो, चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में हो, चाहे स्कूल की क्लास में हो. अच्छा, that way, हाँ. तो उस टाइम पे हम नींद ले लेते थे, जिसको कहते हैं. तो the other thing which happened, which I felt personally, I think हमारे जैसे, मेरे जैसे कई को ये होता होगा कि वहाँ पर जाकर एकदम से हम पहले 3-4 महीने में एक बच्चे से, जो कि हम घर के बच्चा टाइप 16 साल के, बिल्कुल 16 साल के, एकदम वो हमको लगा कि हम शायद एकदम वी हैव बिकम मैन. जब 6 महीने बाद पहले बाहर हम छुट्टी आए तो एक तो शक्ल तो हमारी वैसे ही बदल जाती है, पूरा बाल गायब हो गए. और जितना एक्स्ट्रा फैट था वो सब पूरा चला गया. तो हड्डियां भी दिख रही हैं और कहीं मसल्स भी दिख रहे हैं. तो जब हम चलते थे तो हमारे को लगता था कि वी आर समथिंग डिफरेंट. वी हैव बिकम नॉट ओनली मैन, बट वी हैव बिकम समथिंग
which our parents would be proud of. Proud of. And of course, वो तो थे ही, हमारे friend circle जो था, they used to look upon us with awe, inspiration. Yeah. So all these things were actually good life-changing experiences. और हमें लगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है. और दूसरी चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगी और जिसको हम कह सकते हैं कि एक हर एक फौजी के अंदर आ जाता है, वो हम हर एक को देखते हैं कि हम इसको कैसे मदद करें. You know, that helping thing inside That say, got developed, I can do it. Yeah. So if he's in trouble, I can help him. तो ये चीज़ तो मेरे फर्स्ट 6 months में ही हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम एक कोर्समेट सारे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठा रगड़ा पट्टी होती थी, एक दूसरे की मदद करना हमारे अंदर घुस गया था. So these were interesting things which happened there. Wonderful. Lovely to hear that. सर अपनी रेजिमेंट के बारे में बताइए. ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. जब हम IMA में जाते हैं तो जो हमारी पासिंग आउट होती है देहरादून से, उससे पहले हमारे से चॉइस मांगी जाती है. ओके. तो 3 चॉइसेस होती हैं. उसमें पहले आप इन्फेंट्री जाना चाहते हो या ASC, AOC, आर्मर्ड, कौन से आर्म में जाना चाहते हो. और दूसरा होता है अगर आप इन्फेंट्री में जाना चाहते हो तो आप कौन सी रेजिमेंट प्रेफर करोगे. अच्छा, that's a choice that you get. Choice given to us and more often than not वो choice मिल जाती है, but कई कई भी नहीं भी मिलती है. जैसे मेरे केस में नहीं मिली. अच्छा. मैंने ऑप्ट किया था, डोगरा था मैं, तो मैंने पहले अपना दिया डोगरा रेजिमेंट और दूसरा दिया मैंने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स. तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे साथी संगी, वो कह रहे तू ये भर रहा है तो ये नहीं मिलेगी. मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी. कह देखना तेरे को मद्रास रेजिमेंट मिलेगी. आई सेड नहीं मिलेगी. कहता नहीं मिलेगी. मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं मिली तो क्या तू एक बार लिख दे, देख तेरे को मिलेगी. तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ. मैं थर्ड चॉइस अपनी बड़ी मद्रास रेजिमेंट, जस्ट लाइक दैट. ठीक है. तो ना तो मेरे को डोगरा मिली, ना मेरे को जैकरेट मिली, और मेरे को मिली मद्रास रेजिमेंट. एंड उस दिन थोड़ी देर के लिए लगा कि वो आती है फीलिंग, क्योंकि मेरी चॉइस थी डोगरा रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स. तो थोड़ी देर के लगा कि यार चॉइस नहीं मिली और नंबर 3 चॉइस मिल गई. बट देन हमारे संस्कार थे जहाँ से हम घर से निकले हैं कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, तो हमने वही सोचकर उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया. एंड आई टेल यू दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी. अच्छा. मद्रास रेजिमेंट इज नॉट ओनली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स, हमारे आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, और उसके ऊपर से मेरे को मिली 9 मद्रास. ओके. 9 मद्रास जो है वो ट्रेवनकोर स्टेट फोर्स है. पहले महाराजा ट्रेवनकोर की, जो इंडियन आर्मी की मतलब हिंदुस्तान के अंदर पुरानी फौजों में सबसे पुरानी फौज मानी जाती है. हाँ जी, हाँ जी. उस ट्रेवनकोर इन्फेंट्री को बाद में 9 मद्रास का नाम दिया गया. तो मेरे को जो कमीशन है वो 9 मद्रास रेजिमेंट में मिली. वंडरफुल. तो एक तो वो चीज़ थी, दैट वाज आई वाज फिल्ड विद प्राइड. उसके बाद उसके अंदर मैंने सर्व किया 6-7 साल के लिए. वहां से मैं शिफ्ट हो गया 10th बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, जो एक नई यूनिट थी. ओके. तो मतलब आई सॉ अनदर यूनिट न्यू रेजिंग आल्सो, बट मद्रास रेजिमेंट ट्रूप्स हुई. तो मैं इतना बड़े इत्मीनान से और सेटिस्फेक्शन के साथ कह सकता हूँ आज कि दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी. इतनी बढ़िया रेजिमेंट. हम अपने जवानों को तंबीज बोलते हैं. अच्छा. तंबीज का जो प्रेम है, उनके जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, आई मीन इट इज पार एक्सीलेंस. वो अपने ऑफिसर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, नमक और निशान के लिए, दे आर प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. एनीथिंग. एंड ours is one of the best, I mean, most decorated regiment, मद्रास रेजिमेंट. हमारा कभी आप जाते हैं साउथ में तो वेलिंगटन में जाइए, ऊटी के पास, वहाँ पे हमारा एक भव्य मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है. ओके. एंड इट इज सेड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स सेंटर्स इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड. यस, बिकॉज वहाँ पे स्टाफ कॉलेज है जहाँ पे फॉरेन आर्मीज के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं. ओके. और उनके ऑफिसर्स ट्रेनिंग करने तो आते ही हैं. US आर्मी, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे आते हैं वहाँ. वो और ये को-लोकेटेड है, तो वो लोग भी हमारे रेजिमेंट सेंटर को देखने के लिए आते हैं. ओके. So this is Madras Regiment and I'm very proud that I was in it. और इसके बाद 9 मद्रास ट्रेवनकोर स्टेट फोर्सेस, फिर 10 मद्रास जिसको हम टेनेशियस 10 बोलते हैं अपने आप को. उसको मौका मिला मेरे को कमांड करने का भी, उसमें सर्विस करने का, फिर कमांड करने का. तो आई थिंक दो द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव हैड
doing my army career. I can see that in your face. Sir, also tell us अपने कश्मीर टेन्योर के बारे में बताइए. Share some experiences from there and the learnings. कश्मीर के अंदर आपने बताया मैंने 2 टूर ऑफ ड्यूटी करी है. हाँ जी. 2 सर्विस जो मेरी है कश्मीर की तकरीबन 9 साल की है. अच्छा. मैं 3 बार वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ. ओके. पहले था मैं 1985 to 87. उस टाइम पे अभी मिलिटेंसी ने जोर नहीं पकड़ा था. तो हमारी बटालियन भी गुलमर्ग में थी. तो उस टाइम पे हमने जन्नत का मजा लिया कश्मीर में. बिल्कुल. और बहुत ही सुंदर जगह है. और हमने अपने कभी सोचा भी नहीं था कि उस वादियों में कभी हमें गोलियों की गूंज सुनाई देगी. या कभी हम इन्हीं वादियों में इन्हीं कश्मीरियों के साथ हम ऐसा भी टाइम आएगा जिसके अंदर हम छुप छुप कर कभी उनको ढूंढेंगे, कभी वो हमें ढूंढेंगे. खैर दैट वाज अ टाइम आल्सो. सो हमने अच्छा टाइम देखा कश्मीर में. उसके बाद मेरे 2 टेन्योर आए. पहला टेन्योर था फ्रॉम 1994 to 96. दैट वाज अगेन वो टाइम था जबकि मिलिटेंसी, मैं उड़ी सेक्टर में था. उड़ी बारामूला सेक्टर में जो मिलिटेंसी है वो एक चरम सीमा पर थी. अच्छा. 96 के बाद जब हम वहाँ से निकले तो उसका अभी डाउनफॉल शुरू हो गया था. और फौज ने ऑप सद्भावना जिसमें कि हम लोगों को साथ लेकर आगे चलने की और मिलिटेंसी खत्म करने की और चल पड़े थे. तो अच्छा माहौल हो गया था. उसके बाद दूसरा टेन्योर मेरा हुआ वहाँ पे फ्रॉम 2000 जनवरी टू 2002. दैट इज पोस्ट कारगिल. ओके. और दैट वाज अगेन जिस सेक्टर में था कुपवाड़ा सेक्टर में, वहाँ पर भी मिलिटेंसी जो थी उस वक्त चरम सीमा पर थी. और बल्कि जहाँ पे मैं पोस्टेड था उसके जगह का नाम था चक्की गम एरिया बोलते हैं उसको जो ISI पाकिस्तान है. हाँ जी. और जो ये टेररिस्ट थे उन्होंने उसका नाम दे रखा था आज़ाद कश्मीर, द लिबरेटेड जोन ऑफ कश्मीर करके बोलते थे उसको. और जिस जगह पे एक्चुअली था मैं और मेरी बटालियन के साथ, आई वाज कमांडिंग एट दैट टाइम, उस जगह को वो लोग राजधानी कहते थे. अच्छा. और उसके अंदर जितनी भी तंजीम्स हैं उनके जंगलों में उनके हाइड आउट्स हैं. मैगनवार हिल्स बोलते हैं, बहुत बड़ा इलाका है वो. ओके. और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई थी. जो पहला टेन्योर था उड़ी का, उस टाइम पे जो हमारा फेस टू फेस होता था, हाँ जी, उसके अंदर हमने ये पाया था कि ज़्यादातर वो कश्मीरीज होते थे. कुछ उनके अफगानीज उनके अंदर डाल दिए गए थे. तो जो उनका भी लड़ने का तरीका, जो हमारा जो एनकाउंटर्स वगैरह होते थे, हाँ जी, उसमें हम अच्छा देखभाल करके, मतलब वी वर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दोज ऑपरेशंस. एंड आवाम का भी साथ हमें मिलता था. श्योर. बट जब ये कारगिल हुआ, उस टाइम पर किसी हद पर जो आवाम है उनके जहन में भी ये डाल दिया गया था थ्रू प्रोपेगेंडा एंड ऑल दैट कि अभी हम जो है कारगिल में आ गए हैं. अच्छा. ये पाकिस्तानियों ने इस तरह से प्रोपेगेंडा वगैरह किया और हम वो फतेह कर लेंगे इंशाल्लाह, ये पूरा जो अब कश्मीर हमारा हो जाएगा. और कुपवाड़ा बीइंग पार्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जहाँ शुरू से मिलिटेंसी पहुंच रही है, तो वहाँ पे भी लोकल्स के अंदर जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो इस तरह का जज्बा था. okay. तो इस माहौल पे हम वहाँ पहुंचे. और लोलाब वैली बोलते हैं उस एरिया को, जो कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे आई थिंक वर्ल्ड में ही, कश्मीर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही सुंदर जगह है. ये वही जगह है जहाँ कहते हैं जब कबलिया आए थे 1948 में, तो वहाँ आकर रुक गए, वहाँ की वादियाँ देखकर, वहाँ का हुस्न देखकर वो वहीं ठहर गए थे. अच्छा. तो इतनी सुंदर जगह है वो. उस जगह को मैंने देखा है कितना खून खराबे से कितना वो तहस नहस हो चुकी थी. सो दैट दोज आर टाइम्स इन द वेज जो मैंने कश्मीर को देखा. So you've seen that difficult part of Kashmir also. सर, एक आर्म फोर्सेस का माइंडसेट क्या होता है, एक फौजी का माइंडसेट क्या होता है? शेयर समथिंग अबाउट दैट. मैं फौजी का तो आई थिंक वही होगा जो मैं अभी आपने पूछा तो इस तरह सोच रहा हूँ. माइंडसेट किसको कहते हैं? हमारा माइंडसेट एक ही होता है. वो ये है कि हमसे जो भी काम हो वो देश के चिंतन करते हुए हो और अपने जवान का ध्यान रखते हुए. ओके. सी फॉर अस एज ऑफिसर्स, हमारे अंदर सबसे पहले आता है
सबसे ऊपर आता है हमारा देश। शौर्य, दक्ष, युधे, देश के बाद आता है हमारा रेजिमेंट, हमारा फौज और उस तरह से करके। उसके बाद आता है हमारा जवान। तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, इनका देखभाल अच्छा हो रहा है, तो पूरा माहौल जो है, पूरा देश जो है, और हम भी उसके अंदर शामिल हैं, हमारी फैमिलीज भी शामिल हैं, वो सब जो है एक अच्छे जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो माइंडसेट जो होता है वो यही होता है कि भूल से भी कोई भूल होना, अच्छा, वो है ना, नेकी पर चले हम, वो हमेशा रहता है। हमारी एनडीए की प्रेयर होती थी, उसमें एक पोर्शन था, ओ गॉड एंडोस विद द करेज which is born of the divine love and which knows no compromise or retreat when truth and right are in peril. Very interesting है कि कहीं पे भी अगर सत्य और जो हमारा राइट है, जो एक सिटीजन का राइट है, इन दोनों को कभी भी अगर खतरा आएगा या कभी भी इसके अंदर कोई दखल अंदाजी होगी, तो भगवान हमें इतना करेज देना कि हम बगैर पक्षपात के इसके साथ जूझ जाए और वही करें जो कि धर्म अनुसार ठीक है। विद धर्म आई डोंट मीन रिलीजन, या आई गेट दैट, धर्म अनुसार जो ठीक है। सो दिस इज द माइंडसेट, दैट इज व्हाई दे से आर्म्ड फोर्सेस इज टोटली सेकुलर। सेकुलर शब्द से मैं इतना इत्मीनान नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, मगर हाँ, सबका सबसे प्रेम, सबसे सद्भाव, हर एक की इज्जत, और जो धर्म फॉलो करना चाहता है वो करे और इज्जत के साथ करे। ये चीज जो है फौज के अंदर आपको देखने की मिलती है। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिसको हम बोल सकते हैं भारतीयता, हमारे सनातन धर्म का माइंडसेट है, विच सेज कि हर कोई जो है वो एक है, भगवान एक है, उसके नाम अनेक हैं, और उसके नीचे हम सब उनकी संतान जो है, हम भी एक हैं। सो भाईचारा, fatherhood of God and brotherhood of man. Wonderful. So what you're saying is nation first, post that it is brotherhood and teamwork. Yeah. Which you can creates say the that. whole Yes, yes. Esprit de corps, comradeship, teamwork. Wonderful, sir. Sir, ये बताइए mental strength or we can say mental endurance कितना जरूरी है? मुझे खुशी है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा समीर. It's a very good question and generally फौज का समझते हैं कि ये फौज में है तो इसको चाहिए होगा फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टैमिना, तो दिमाग क्या लगाना है इसमें. सो बट लेट मी टेल यू, मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एंड्योरेंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मेंटल स्ट्रेंथ. अच्छा जी. अगर आपके अंदर दिमाग की अपनी सहन शक्ति नहीं है, दिमाग जो है आपका एक ब्लैकआउट स्टेज पे पहुंच जाता है, जल्दी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो फौज आपके लिए नहीं है. एक्चुअली मेंटल स्ट्रेंथ आई वुड से इज मच मोर इम्पोर्टेंट. आप जैसे देखिए कि यू सी माई फिजिक, आई एम नॉट लाइक दारा सिंह और यू नो सलमान खान, ऐसा तो नहीं है, सिंपल ही है ना. तो हमारे अगर इस फिजिक के साथ हम वही चीज़ करते हैं, चाहे वो 20 किलो वजन उठाना है, 8 किलो की राइफल उठानी है, ठीक है, और 40 किलोमीटर भागना है सब कुछ उठाकर, तो इसी स्ट्रक्चर के साथ भागना है ना. बिल्कुल. तो अगर मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो शायद इतनी नहीं होगी. इट इज द मेंटल स्ट्रेंथ विच मेक्स यू टू डू द थिंग. तो मेंटल एंड्योरेंस जो है वो बहुत जरूरी है. बॉडी आपकी चाहे साथ देना दे, और दिमाग बोले कि ये साथ अगर देना भी चाहती है तो दिमाग बोले यार छोड़ो, यू कांट डू इट, तो यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. वेयर एज अगर बॉडी जो है वो थक गई है और टूट रही है, और वो दिमाग आपका कह रहा है नहीं, आई विल डू इट, आई विल ड्रैग ऑन, तो वो बहुत, हमारे ऑपरेशंस होते हैं 72 घंटे के चलते हैं, हम लाइट डोगो रहते हैं, खाना भी जो है जो टिफिन में कैरी किया हुआ है, चॉकलेट्स वगैरह कैरी किए हुए हैं, उसके साथ रहते हैं. यू सी सियाचिन में 6 months यू आर कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन. आपके पास खाना नहीं है, इतना
ऐसा मौसम है, ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा Extreme weather. एक्सट्रीम वेदर है, इंक्लीमेंट है, जहाँ पर कि आपकी कहते हैं जिंदगी जो है, अगर आप 6 महीने वहाँ काट दिए तो शायद 6, 8, 10 साल आपकी कम हो जाती। You know, it has such a kind of toll on your physical body. But वहाँ पे रहना और उसको endure करके आगे चलना, that comes with mental endurance and mental toughness. So you have to be physically tough and more importantly mentally tough also. इंटरेस्टिंग सर। अपने पहले कॉम्बैट ऑपरेशन के बारे में बताइए। किसी साथी को गोली लगते हुए देखा आपने? See, unfortunately, किसी साथी को नहीं, मैंने काफ़ी साथियों को गोली लगते हुए देखा है। अपने जवानों को खोया भी है ऑपरेशंस के दौरान। बट ये हमारे फौज का हिस्सा है, खासकर इन्फेंट्री, जिसके अंदर हम कॉम्बैट में रहते हैं। जब भी ऑपरेशंस में जाते हैं तो हम ये सोचकर नहीं जाते हैं कि हमें गोली लगेगी या वो होगा, ऐसा नहीं सोचते हम। वी गो टू फिनिश अ टास्क, कि हमें ये काम मिला है, इसको कंप्लीट करना है। और हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि जैसे, और हमारे अंदर दैट यू कैन से डिवाइन पावर, देवी शक्ति या जो भी कह सकते हैं, वो हमारे हर एक रेजिमेंट का अपना इष्ट देवता होता है, उससे मिलती है। तो हम जैसे हमारे 10 मद्रास के बजरंग बली जो है वो हमारे इष्ट देवता बन जाते हैं हमारे ग्रुप के। तो उनको जब ध्यान में रखकर हम चलते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम आपके टास्क पर जा रहे हैं जो कि मेरे देश हित में है, तो इस टास्क के ऊपर आप हमारी रक्षा करना और हमें इस टास्क में सफल करना, बस इतना। तो वी डोंट एक्चुअली गेट इनटू दैट, बट आई विल टेल यू वन थिंग इंटरेस्टिंग। यू सेड फर्स्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस बोलते हैं ना आप। तो जब हम जाते हैं ऑपरेशंस में, उससे पहले जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं IMA वगैरह में, और उसके दौरान सर्विस के अंदर भी जब हम सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो हमारे को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है जिसको बोलते हैं बैटल इनोकुलेशन। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग फील्ड फायरिंग रेंज के ऊपर जाकर पीस टाइम के अंदर, वहाँ पर हम लाइव फायर के नीचे से गुजरते हैं, ताकि हमें एक्सपीरियंस हो कि भाई गोलियां आ रही हैं या आर्टी फायर आ रहा है या मोटर का फायर आ रहा है तो कैसे साउंड करता है, और कितना नज़दीक, कितना, तो बिल्ड इन मोर कॉन्फिडेंस एंड हम यूज टू हो जाएं वो आवाज़ों को सुनने के लिए। तो ये सब होता है, ठीक है। बट लेट मी टेल यू समीर, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअलिटी। अगर कोई कहे कि जब पहली गोली कम्बैट के अंदर पास से निकल कर गई या हुआ, तो उस टाइम पे थोड़ा जरक नहीं मिला या थोड़ा सा जिसको एक तरीके से कैसा डर नहीं आया, तो आई थिंक ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। वो चीज आती है। सो फर्स्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस मेरा था, उसके अंदर हम एक मिलिटेंट्स की टोली को चेस कर रहे थे। तो हमने उनको उनका जो सामान पकड़ लिया था, सब कुछ कर लिया था। उनमें से एक मिलिटेंट्स को हमने कब्जा भी कर लिया, उसको कैप्चर भी कर लिया था। मेरे जवान ने उसको फिजिकली, वो मशीन गन के साथ था, उसको फिजिकली एम्पावर कर लिया था। अच्छा। बट उसके साथ जो बाकी साथी थे, क्योंकि जो हमारा, जब हमने उनको उनके ऊपर रेड किया था तो उनको पता चल गया, वो भाग गए थे, और इट वाज इन हिल्स, तो वो उन्होंने हिल पे भागना शुरू कर दिया। तो हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो हम नीचे थे वैली में, वो थोड़ा ऊपर थे। ओके। तो ऊपर से सडनली उन्होंने अपना पोजीशन वगैरह बनाया। उससे पहले जो फायरिंग हुई थी वो एकदम होकर खत्म हो गई थी, क्योंकि हमने पकड़ लिया, वो सब भाग गए। अभी उसके ऊपर उन्होंने अपना पोजीशन बनाकर हमारे ऊपर फायर एकदम खोल दिया। तो जब वो फायर खोला तो उस टाइम पे बुलेट जो थी, दे वर पासिंग, अपना कान की इधर से जा रही थी, कोई पत्थर पे लग रही थी, कोई सो वी कुड dust was flying. So we were actually under live fire and at a very close distance. तो उस टाइम पे पहला रिएक्शन जो सभी का, वैसे जवान थे हम, ऑफिसर्स भी हम जितने थे, फर्स्ट थिंग वाज, हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, सिखलाई होता है, वी डाइव डाउन, मतलब एकदम आड़ पकड़ो और जमीन पे जाओ, तो प्रोटेक्शन। सो हम उसके अंदर गए। अभी निकलना तो है, उससे निकल कर आगे चलना है, क्योंकि वो उनको चेज भी करना है, उनको पकड़ना भी है, फायर का जवाब फायर से देना है। तो ये सब चीजें ध्यान, वो फिर ट्रेनिंग टेक ओवर कर लेती है। स्प्लिट सेकंड के लिए हुआ, उसके बाद देन द ट्रेनिंग टेक्स ओवर, एंड वही हुआ। और धीरे धीरे करके पहले मैं उठा, मैंने उठकर बोला सबको, अरे
चलो कोई नहीं, दिस फायर इज नॉट इफेक्टिव, चलो चलते हैं, उनको उधर से घेरते हैं, चलो हमने मूवमेंट शुरू कर दी। तो एक बार जब मूवमेंट शुरू होगी तो देन वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस एंड ऑफ कोर्स सक्सेस मिल जाता है। दैट वाज द फर्स्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस एज यू सेड। So when you said that you've seen कि आपके साथियों को गोली लगी, उस समय क्या महसूस किया और उस समय दिमाग में क्या चलता है? 2-3 तरह के जज्बात दिमाग में उठते हैं उस टाइम पे। पहली बात तो गुस्सा, इट्स अ नेचुरल थिंग। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, क्योंकि आप उनके ऑफिसर होने के नाते उनके सरगना, आपको उनकी प्रोटेक्शन भी आपका जिम्मेवारी है। अभी ऐसा हुआ कि मैं बोल रहा था, फायर हमारे पास इफेक्टिव फायर आ रहा था और मैंने बोला कि पेड़ की आड़ नहीं छोड़नी। तो हम पेड़ के पीछे, अलग अलग पेड़ के पीछे हम थे, हमें पता था फायर कर रहा है, बीच बीच में हम भी कर देते थे, वहां से फायर आता था। तो मेरे से हटकर, मेरी यूनिट का नहीं था, एक हमारे साथ कोई और फौज आई हुई थी, वो था साथ में, तो उसका मैंने देखा जवान हिल रहा है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बैठ जाओ, आड़ मत छोड़ो। तो उसने मेरी तरफ देखा और पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया कि वो चल पड़ा, और चल पड़ा भी कितना, बेसिकली उसने टर्न लिया, टर्न लेते हुए उसका बैक एक्सपोज हो गया फील्ड ऑफ फायर की तरफ। तो स्प्लिट सेकंड में a bullet went through his buttocks and he didn't even realize it, उसको पता भी नहीं चला। ये तो मैंने जब देखा वो गई है और एकदम साउंड भी एकदम नजदीक से आई है, तो मैंने उसको उसका बोला, अरे तुम देखो तुमको बुलेट लगी है। तो देन ही रियलाइज, जब पीछे हाथ लगाया तो दैट वाज बुलेट। सो मेरे को उस वक्त इतना गुस्सा है और मैंने उसको गुस्से से ही बोला कि तूने आड़ क्यों छोड़ी। तो ऐसा जज्बा आया था। अभी वो तो गुस्सा था एकदम, और काफी देर तक वो मेरे को गुस्सा रहा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। फिर इवैक्यूएशन वगैरह करके कर दिया, क्योंकि हमें मिलिटेंट चाहे 10 मिल जाए, मगर अगर मेरे जवान की एक की भी मौत होती है ना, तो वो मैं लेता हूँ कि मैं फेलियर हूँ, आई वॉज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट माई जवान। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हादसा ना हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ब्रीफ में ना एक छोटा अपने पूरे और करियर का जो सबसे मुश्किल आपका मिशन था, गिव अस अ ब्रीफ अबाउट दैट, द मोस्ट डिफिकल्ट रूट, द फर्स्ट दैट कम्स टू योर माइंड। ओके समीर, आई डोंट जनरली टॉक अबाउट ऑपरेशंस, इसलिए नहीं कि वो उसमें कोई सीक्रेट है या कुछ ऐसा है, क्योंकि उन चीज़ों की तो हम बात भी नहीं करेंगे। मगर उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे ना वो थोड़ा ईगो की बू आ जाती है, ठीक है, विच समहाउ मेरी कोशिश रहती है कि वो मैं अवॉइड कर सकूं। बट क्योंकि आपने इस तरह से पूछा है ऑफ द कफ, तो मैं ऑफ द कफ ही जवाब दूंगा कि जो पहली चीज़ दिमाग में आएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके, जब मैं डिफिकल्ट तो सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें, बट दिस वाज मोर डिफिकल्ट, आई कैन नाउ टेल यू दिस। क्योंकि हुआ क्या था कि हमारी यूनिट जो है कुपवाड़ा में, जब मैं बोल रहा हूँ ना कमांडिंग ऑफिसर कर रहा था, तो मैं यूनिट को लेकर कुपवाड़ा में पहुंचा। तो उधर पहुंचने के बाद जो रास्ते में मेरे जो जनरल साहब थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को बताया कि आप लोग जो जा रहे हैं वो उस जगह में भेज रहा हूँ बेटे आपको और आपके जवानों को, जहाँ पर कि आपको बहुत ही एहतियात बरतनी होगी। यू कैनॉट बी फूल हार्डी and you have to be always very very cautious in your operations. Do it with confidence, after full planning, and only then get into it. क्योंकि काफ़ी धोखे हो चुके थे आर्मी के साथ, किसी ने गलत सोच ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और हमारी टुकड़ी गई, वहाँ पर उनके ऊपर फायर हो गया, हमने जवान अपने लॉस कर दिए। तो ये चीज़ें सब कही थी मेरे को। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उधर जो एसएसपी था, दैट फेलो एंड आई हैड सर्व टुगेदर इन माय प्रीवियस टेन्योर। अच्छा। और साथ में उसके बैच के जो लोग थे, उनसे मैं गुलमर्ग के टाइम पे जब वो आए थे पुलिस के अंदर, उस टाइम पे मिल चुका था, वो प्रोबेशनरी कर रहे थे। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई थी। All these people were recruited or they were made as DYSPs at that point of time, जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, और इनको स्पेशल ऑप्स में डाला गया था। तो वो मेरे को बंदा जानता था, तो उसके थ्रू मेरे को मैसेज आया
कि वो जो एसएसपी साहब हैं वो बोल रहे हैं जब CO 10 मीटर्स आएंगे तो उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना कि आते जाते जब हेडक्वार्टर जाते हैं आते जाते मेरे से मिलने एक बार। तो मैं उसके पास पहुंच गया, तो उसने दरवाजे वगैरह बंद करके, उसका स्पेशल ऑप्स का इंस्पेक्टर वहाँ बैठा था साथ में, तो उसने मेरे को बोला कि कर्नल साहब आई नो यू वेरी वेल, और आपने जब उड़ी में थे तो हमारे साथ काफ़ी ऑपरेशंस किए थे, तो एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू। मेरे पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो कि डिफिकल्ट है उस जगह में जाना। हाँ। पहाड़ों के बीच में बर्फ अभी पिघली नहीं है, तो इसलिए उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मगर मेरे पास इंफॉर्मेशन पक्की है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं। ओके। तो अगर हम इस वक्त पे स्ट्राइक करेंगे अगले 48 घंटे के अंदर, तो वी विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस और इस एरिया का भला हो जाएगा। मिलिटेंट जो है यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएंगे। Sure. पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो वी शुड डू इट। सो आई सेड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आते ही तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बटालियन मेरे साथ ही है अभी, तो मैं सीधा ही लॉन्च कर सकता हूँ इसमें कोई, तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। बिल्कुल। बट मैंने कहा पहले मैं अपने जो बड़े ऑफिसर्स हैं मैं उनसे बात करूँगा। तो मैं अपने बड़े ऑफिसर्स के पास गया, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि अभी यूनिट आई नहीं है, सेटल नहीं हुई है, और आप लोगों ने इसका फैमिलियराइजेशन भी नहीं किया एरिया का, तो आप एकदम इसके अंदर चले जाएंगे सबको लेकर, तो पहली बात तो मुश्किल तो है ही है, बट इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मेरे पास तो एक अपॉर्चुनिटी आई है ना, और इन सेवान को मैं जानता हूँ, एसएसपी को, बिल्कुल, जो मेरे को गलत जगह नहीं और वो कह रहा है कि मेरा इंतजार कर रहा था, कि उसको मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा उस पर भरोसा है, आप मेरे को करने दीजिए। उन्होंने कहा फिर मैं बोलता हूँ कि मेरी तरफ से यू शुडंट बी डूइंग इट। आई सेड डिसीजन इन माइन सर, इफ यू परमिट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, तो मैं ये करना चाहूँगा। तो then he said sure, it's all left up to you। तो मैंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो ऑपरेशन किया, और टू कट इट शॉर्ट, उस ऑपरेशन जो था हमें तकरीबन 8 घंटे अननोन रास्ते के ऊपर, पूरा पहाड़ी रास्ता, उसके ऊपर चढ़ना था। वो किसी ने, हम में से किसी ने, मेरे जवानों ने, किसने भी वही नहीं देखी रूट थी, नहीं देखा हुआ। सिर्फ हमारे पास गाइड्स थे पुलिस वालों के, जो हमें उस रूट से ले जा सकते थे। फिर हमको एक थिक जंगल के जाकर उसको घेरना था, घेर कर वहाँ पे धीरे धीरे बढ़कर, जंगल में धीरे धीरे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ट्विग्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, और अभी बर्फ ऊपर पिघली भी नहीं थी पूरी तरह से, तो उसके अंदर जाकर हमने उनको मिलिटेंट्स का सामना करना था। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। भगवान साथ में था, हिम्मत उसने दी थी, और क्योंकि वो क्या, दे सम उर्दू वर्ड फॉर इट कि हिम्मते मर्दा क्या मदद खुदा, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो बस वही हुआ। सो एक्चुअली इट वाज लाइक दैट, इट वाज जस्ट प्रोविडेंस, लक एंड डिवाइन विल। वी कैरिड आउट दैट ऑपरेशन very very successfully. We busted 18 hideouts. And we got the JUM का chief of that area. Wonderful. So ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो सका। That was a very difficult operation with very good success. And best thing was, हमारे किसी भी जवान को, मेरे साथ उस ऑपरेशन के अंदर हम 300 थे, 300 of us with 100 police people. So 400 लोग उस जंगल के अंदर, and by his grace not a single scratch to anyone. Wonderful. So that is lovely to hear that. Sir, leadership के बारे में आपने क्या सीखा in the Indian Army? How would you define leadership? हमारे अंदर ना समीर, ये जो लीडरशिप जो चीज़ है, ये जो आपने पहले बात करी ना, इंडिया में जाके क्या चेंजेस आए या आर्मी ज्वाइन करके क्या हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे लीडर बन गए। उसके बाद हम बाद में सोचते हैं कि लीडर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जब हमने इन चीजों को पढ़ना शुरू किया तो हमने रियलाइज किया, यार ये तो प्रॉब्ली हमारे अंदर है। It got developed. बट ये डेवलप हुई, एज यू सेड, इट गॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। फिर शुरू में जब हम अपनी यूनिट के अंदर गए तो हम एक जूनियर लीडर थे, हमारे से भी जूनियर लीडर जेसीओज एनसीओज वो भी थे, उनसे सीखने को मिला, अपने सीनियर्स को देखा, उनसे सीखने को मिला। तो वो देखते देखते एक्सपीरियंस से यू स्टार्ट गेटिंग दोज लीडरशिप क्वालिटीज। बट सबसे बड़ी मैंने जो क्वालिटी मैं मानता हूँ लीडरशिप का,
एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज कंपैशन. Compassion, huh? He must have compassion for his under command Team. team. हर एक चाहे वो जवान जूनियर से जूनियर जवान है या इमीडिएट कोई जूनियर है, ऑफिसर्स है, जैसे कोई भी है, उसके रिस्पेक्ट और उसकी ज़रूरतें वो एक लीडर को जानना और उसको पूरा करना उसकी पहली जिम्मेवारी है. अगर वो चीज़ कर लिया तो उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं. अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना वो करने का, बिल्कुल, तो आप बाकी चीज़ें अपने आप कर लोगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो जिसके लिए आप कर रहे हैं. आफ्टर सी व्हाट आर वी एज ऑफिसर्स, हम लीडर तभी है ना if there are people to lead. Absolutely. So if people the lead are happy, they make you a good leader. फिर सक्सेस आता है, जब सक्सेस आता है तो you are called a good leader. Absolutely. So that is what I Very think. nicely बाकी said. qualities तो हैं ही हैं leadership. Very nicely. So there are a lot of movies which have been made on the, Jawans, the Indian Army. There are a lot of movies. Is there any movie that you've seen which has come close, which shares the emotion of a Fauji? कोई दिमाग में आती है any picture, any movie? I always get nostalgic जब भी मैं मूवी देखता हूँ फौज की. अच्छा. और ये अभी से नहीं है, ये बचपन से है. तो कितना नज़दीक आती है रियलिटी के, वो एक बड़े कंपैरेटिव सी चीज़ हो जाती है. उसमें कई जो इंसिडेंट्स होंगे वो बिल्कुल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी ऐसा होता है. और कई चीज़ हमें पता है उन्होंने लगाया क्योंकि वो ग्लैमर करना है, वो बिकना. बिल्कुल. सो दैट इज़ अ डिफरेंस. बट अदरवाइज हालांकि हमारी जो इंडियन मूवीज हैं बहुत कम है जो उस स्तर पर पहुंची हैं अभी तक भी. कुछ तो एकदम दिमाग में आ जाती हैं, चाहे हकीकत जो एक पिक्चर थी वो बहुत ही उम्दा, वेरी फाइन मूवी. एंड व्हिच इज बॉर्डर इज अनदर वन. दैट बॉर्डर अगेन अ वेरी गुड मूवी. लक्ष्य अगेन वेरी गुड मूवी. बट हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज देखते हैं ना, गन्स ऑफ नेवरॉन, एंड उसमें ग्लैमर तो होता है, वो ग्लैमर होता है हीरो की वजह से. बट अदरवाइज द वे इट इज पिक्चराइज्ड एंड डिपिक्टेड, रियलिटी जो वो दिखाते हैं ना, प्रॉब्ली हमारी सिनेमेटोग्राफी जो है इतने उस स्तर पे पहुंची नहीं है, या हम उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग बनाते नहीं है. श्योर. सो यू वन द विशिष्ट सेवा मेडल from the President of India. Tell us a bit about that and your, feeling on receiving that. Okay, I didn't win. There was no competition, so I didn't win. Sure. It was awarded to me, and I can very fairly say that probably मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया. This was awarded to me because of the work done by my battalion. Sure. मेरे जवानों ने, JCOs और मेरे ऑफिसर साहबान जो साथ में थे, उन्होंने जो काम किया उसका श्रेय शायद मेरे को मिल गया. सो आई एट्रीब्यूट दैट अवार्ड टू माय बटालियन, माय ट्रूप्स, माय ऑफिसर्स. उनको भी अवार्ड्स मिले और वो बड़ा एक सेटिस्फैक्शन, इट वाज अ बिग सेटिस्फैक्शन. एंड मेरे को भी मिला ये. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि ये मेरे को एक अवार्ड मिला. एंड दिस वाज फॉर द टेन्योर दैट आई हैड इन, जो मैं आपसे बात कर रहा था, कुपवाड़ा एरिया में. वहाँ का जो टेन्योर था हमारे बटालियन का, क्योंकि हमारी बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया. हमने वहाँ से, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे एरिया में हमने जो है टेररिज्म को एकदम फिनिश कर दिया था. और फिनिश किया ये नहीं कि टेररिस्ट मार के, वो भी तो उनको भी एलिमिनेट हुए, वो जंग में मरे, वो उनके हाइडआउट्स हमने खत्म किए, उनके सोर्सेज हमने खत्म किए. मगर सबसे ज़्यादा मेरे को वहाँ का सेटिस्फाइंग जो मोमेंट्स लगते हैं जो मैंने अचीव किया वहाँ पे, या हमारी बटालियन ने अचीव किया वहाँ पे, वो था कि हमने सद्भावना, जो वहाँ के गांव वाले जो पहले फौज से थोड़ा दूर रहते थे, वो हमारे साथ आ गए. उनके लिए हमने कुछ किया भी. और दूसरा प्रेम, मोहब्बत, लव, वी मूव्ड विद दैट. मेरे जवानों को ये हिदायत थी, और मेरे साउथ इंडियन ट्रूप्स जो तंबीज़ हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं. एक तो इज्जत देना और इज्जत लेना समझते हैं. तो उन्होंने किसी गांव को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, सबको अपनी दिनचर्या चलनी चाहिए. किसी को जैसे पुलिस करती है ना, इसको मारा, इसको हो गया, बिल्कुल नहीं. कोई किसी से कोई एडवांटेज नहीं लेना, अनड्यू, बिल्कुल एकदम वेरी विद अ ह्यूमन अप्रोच मैं बोलूँगा, जो हमने वहाँ पे काम किया, जिससे कि हमें सक्सेस मिला.
कोई वही लोग फिर हमें आते थे बताने के लिए कि भाई फलाना मिलिटेंट जो है टेररिस्ट उस जंगल में छुपा है, वो वहाँ छुपा है, वो यहाँ पर आएगा, उधर जाएगा। सो हमारे सोर्सेज बनते थे, इंफॉर्मेशन मिलती थी हमें, एंड वी यूज्ड टू एक्ट एंड अचीव सक्सेस। तो दैट इज what was there. Wonderful. So before I move, to your second innings, share with us. I see these beautiful pictures on your T-shirt. Can you share something about this? Okay. Right. This is National Defense Academy. Oh. हमारा संज्ञा है National Defense Academy का. Okay. And इसको हम स्क्वाड्रन T-shirt बोलते हैं. अच्छा. तो I belong to India Squadron of 55th NDA course. Oh. तो ये हमने 55th course का ये हमारा स्क्वाड्रन शर्ट है। Okay. इसके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंसिग्निया है, एंड इंजन्स, वी कॉल आवरसेल्व्स इंजन्स। Okay. इंडिया आई से इंजन्स। Oh. तो हमारा निकनेम है। सो दिस इज व्हाट इट मींस, इंजन्स। Wonderful, sir. Sir, salute to you and thank you for your service. Jai Hind. Jai Hind, and thank you, Samir, for giving me this opportunity. Thank you. Yeah, before I end, एक कुछ लाइनें याद आती हैं। फिर उड़ गई नींद मेरी ये सोचकर कि जो खून शहीदों का बहा है वो मेरी ही नींदों के लिए था। I'm inspired, completely inspired, and have learned a lot from this conversation. If you also have learned, anything new, please mention in the comments below at least, 3 learnings. और अगर आप भी इन सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाना चाहते हैं, and you feel it slightly difficult, and you feel the need for guidance, you can reach out to me at my numbers mentioned below and let me personally coach you and train you through a very simple yet effective 10-week program, which is very, very scientifically tested. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video and also share with your friends and family so that they can get inspired too. Please take good care of yourself. Keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind.